یسوع مسیح کے عظیم اور خوبصورت نام میں تمام حاضرین کو اور ڈائریکٹ ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو پیار بھرا سلام قبول ہو۔ ہمارے چینل کو دیکھیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ایک ہی دفعہ سبسکرائب کریں، اس کے بعد لائک کریں۔ ہو سکتا ہے آپ ایک لائک سے کوئی شخص کلام کو سنے اور اس کی زندگی بدل جائے۔ آج ہمارا مضمون ہے خدمت اور بلاہٹ۔ کیا مضمون ہے جی؟ خدمت اور بلاہٹ۔ اور ہماری سندی آیت ہے عبرانیوں کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 4تھی آیت۔ وہاں پر لکھا ہے کہ جب تک کوئی شخص خدا کی طرف سے ہارون کی طرح بلایا نہ جائے، اپنے آپ عزت کا عہدہ اختیار نہیں کر سکتا۔ تین طرح کی بلاہٹ کے تعلق سے پچھلے سنڈے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بلاہٹ جو خدا کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو بلاہٹ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، خدا اس آدمی کے ساتھ ہوتا ہے، اس بہن کے ساتھ ہوتا ہے، اس بھائی کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو چاہے وہ جوان ہو، خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ خدا کا وعدہ ہے کہ میں اب سے لے کر ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں جہاں بھی جاؤ گے میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، میں تمہیں ہرگز یتیم نہ چھوڑوں گا، بلکہ اب سے لے کر دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور خدا جن کو بلاتا ہے ان کو شفا کے لیے، معجزات کے لیے، بدرو گرفتہ لوگوں کی رہائی کے لیے، گنہگاروں کی نجات کے لیے، لوگوں کی تسلی کے لیے، لوگوں کی برکت کے لیے، لوگوں کی شادمانی کے لیے، لوگوں کی آزادی کے لیے، لوگوں کی مخلصی اور رہائی کے لیے خدا ان کو استعمال کرتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں خدا نے موسیٰ کو چنا۔ موسیٰ نے بڑے بہانے کیے، خدا میں تو تھوتھلا ہوں، میں تو بول نہیں سکتا، میں تو رک کر بولتا ہوں۔ خدا نے کہا میں تیرے لیے ایک مددگار تجھے دوں گا، تیرا بڑا بھائی ہارون تیری مدد کرے گا، وہ تیرا ترجمان ہوگا۔ اسی طرح یسوع مسیح نے بھی کہا میں اپنے باپ سے جا کر درخواست کرتا ہوں، وہ تمہیں دوسرا مددگار یعنی روح حق، جسے دنیا نہیں جانتی لیکن تم اسے جانتے ہو، کیونکہ اب وہ تمہارے ساتھ ہے، پھر وہ تمہارے اندر ہوگا۔ تو یہ مددگار جو ہے یہ ابدی مددگار ہے، یہ ہمیشہ تک ہمارے ساتھ رہنے والا مددگار ہے۔ تو جب خدا نے چنا موسیٰ کو، تو خدا نے 430 سال سے جو لوگ وہاں پر قید میں تھے، یعنی 6 لاکھ لوگ بنی اسرائیل قوم، خدا نے اپنے بندہ کو استعمال کیا۔ وہاں پر وہ گیا، اس کے ہاتھ میں کسا تھا، جب وہ عصا زمین پر پھینکتا تو جوئیں بن جاتی، ٹڈیاں اور مچھر آنا شروع ہو جاتا، جب وہ پانی میں پھینکتا تو پانی خون بن جاتا تھا۔ اور اس طرح سے اس نے 10 موجزے بھی وہاں پر دکھائے تاکہ فرعون کو پتہ چلے کہ موسیٰ کا خدا جو ہے وہ زندہ خدا ہے، اور بار بار یہی مطالبہ کرتا تھا کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ ذات ہو کر میری عبادت کریں۔ تو خدا نے اپنے خادم کو استعمال کیا، چونکہ اس نے بلایا تھا، اور اس کو استعمال کیا، اس کی حفاظت بھی کی، اس کو بچایا بھی، اس کو چھڑایا بھی، اور اس کے وسیلے سے اور بھی لوگوں کو اس نے بچایا۔ یعنی 6 لاکھ لوگ اس کے وسیلے سے وہاں سے نکلے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے پرانے عہد نامہ میں یرمیہ کو بلایا۔ یرمیہ بھی بچہ ہی تھا، تو خدا نے کہا کہ تو میرا کلام سنا۔ یرمیہ کہنے لگا خدا میں ابھی بچہ ہوں، میں ابھی بول نہیں سکتا۔ تو خدا نے کہا کہ ابھی تو اپنے ماں کے باطن میں پڑا ہی تھا، تو میں نے اسی وقت سے تجھے چنا اور تجھے مقرر کیا، تجھے مخصوص کیا، اور میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا ہے۔ تجھے جو کچھ کہنا ہوگا میں تجھے بتاؤں گا، پر ان کی بڑی بڑی لاشوں کو دیکھ کر ڈر نہ جانا۔ اور آج ہم پرانے عہد نامے میں سے دیکھیں گے الیشا کے تعلق سے کہ خدا نے الیشا کو بلایا۔ میرے ساتھ نکالیے سلاطین کی پہلی کتاب اور اس کا 19واں باب 15ویں آیت۔ سلاطین کی پہلی کتاب 19واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ لکھا ہے خداوند نے اس سے فرمایا۔ کس نے فرمایا؟ خداوند نے۔ الیشا کے ساتھ خدا نے کلام نہیں کیا، خدا نے ایلیا کے ساتھ کلام کیا ہے، خدا نے ڈائریکٹ ایلیا کے ساتھ کلام کیا ہے۔ خداوند نے فرمایا ہے۔ پالوس بھی کہتا وہ بات جو مجھے خداوند سے پہنچی ہے وہ میں نے تم تک بھی پہنچا دی ہے۔ لکھا ہے خداوند نے فرمایا تو اپنے راستہ لوٹ کر دمشق کے بیابان کو جا، اور جب تو وہاں پہنچے تو حزیل کو مسا کر کہ ارام کا بادشاہ ہو
और निमसी के बेटे यहू को मस्सा कर कि इस्राएल का बादशाह हो, और अबेद महुल्ला के अलीशा बिन साफत को मस्सा कर कि तेरी जगह नबी हो। तू उसको मस्सा कर कि वो तेरी जगह नबी हो, चूंकि मैं तुझे थोड़े अरसे के बाद आसमान पर उठाने वाला हूं, इसलिए जमीन पर एक और नबी की जरूरत है और उसका नाम अलीशा है। उसके बाप का नाम भी, उसके इलाके का नाम भी खुदा ने उसको बताया कि तेरे बाद अलीशा तेरी जगह पर नबी होगा, नबूवत करेगा, लोगों के लिए खिदमत करेगा, मोर्चे करेगा और लोगों की जो भी प्रॉब्लम होगी उसको वो सॉल्व करेगा। सो आगे लिखा है, और ऐसा होगा कि जो हिजकिय्याह की तलवार से बच जाएगा उसे यहू कत्ल करेगा, और जो यहू की तलवार से बच रहेगा उसे अलीशा कत्ल कर डालेगा। तो भी मैं इस्राएल में 7,000 अपने लिए रख छोड़ूंगा, यानी वो सब घुटने जो बाल के आगे नहीं झुके और हर एक मुंह जिसने उसे नहीं चूमा। आपकी बाइबल में अब ये नए एडिशन में ये सुर्खी होगी, अलीशा की बुलाहट है आपके पास। जितने लोगों के पास नया एडिशन है उस एडिशन में ये सुर्खी है अलीशा की बुलाहट। सो लिखा है, सो वो वहां से रवाना हुआ और साफत का बेटा अलीशा उसे मिला जो 12 जोड़ी बैल, कितने बैल जी? 12 जोड़ी कितने होते हैं? 24 बैल। और आज अगर किसी के पास 24 बैल हो तो वो कितना अमीर है। मैं सुबह भी बता रहा था कि अगर एक मरबा जमीन हो तो 1 से 2 जोड़ी बैल वहां पर होते हैं। तो अगर अंदाजा लगाया जाए तो तकरीबन 6 मरबे बनते हैं। 12 जोड़ी बैलों से हो सकता है ज्यादा भी हो, ये हम अंदाजा लगा रहे हैं, यानी 12 जोड़ी बैलों से अंदाजा लगा रहे हैं कि जमीन 6 मरबे होगी अलीशा की, उसके बाप की। इस कदर खुदा ने उनको बरकत दी है। और ये अलीशा बहुत बड़ा जिम्मेदार था, इसके पास 12 जोड़ी बैल है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, लिखा है, सो वो वहां से रवाना हुआ और साफत का बेटा अलीशा उसे मिला जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे लिए हुए जोत रहा था, और वो खुद 12वें के साथ था, यानी जो 12वीं जोड़ी थी उसके साथ वो खुद था। हल चला रहा था, जमीन में काश्तकारी कर रहा था, जिम्मेदारा कर रहा था। और लिखा है, और एलिया उसके बराबर से गुजरा और अपनी चादर उस पर डाल दी। एलिया ने नहीं कहा कि तू मेरे पीछे आ जा, या मैं तुझे चुनने के लिए आया हूं, या मैं तुझे मस्सा करने के लिए आया हूं। मस्सा के अंदर इतनी पावर है कि वो खुद ही अपनी बुलाहट के लिए अपने पास बुला लेता है। आमीन। चादर के अंदर मस्सा था, उसने उस पर अपनी चादर डाल दी। और सुनिए हुआ क्या है, लिखा है, सो वो बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने बाप और अपनी मां को चूम लेने दे, फिर मैं तेरे पीछे हो लूंगा। उसने उससे कहा कि लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? यदि मैंने तो तुझे नहीं कहा कि तू मेरे पीछे आ, मैंने तो सिर्फ चादर तेरे ऊपर रखी है ताकि तुझे मस्सा करूं। अब सुनिएगा, लिखा है, तब वो उसके पीछे से लौट गया और उसने उस जोड़ी बैल को लेकर ज़बह किया। यहां पर एक बड़ी खास सीखने वाली बात है, सारे बैल उसने ज़बह नहीं किए, सारे बैल उसने ज़बह नहीं किए, क्योंकि पीछे खेती बाड़ी का काम उसके बाप का था, उसके बाकी भाइयों का था। लेकिन उसने अपने हिस्से का के जो बैल थे, यानी एक जोड़ी बैल, उसने उनको ज़बह किया और उनकी जो हाथ पर जाली थी उसी के समान से उसने उनको ज़बह करके उबाला गोश्त को, और लिखा है उसने लोगों को खिला दिया। क्यों उसने ऐसा किया? मुझे यहाँ पर याद आ रहा, आप में से जितने लोग पढ़े लिखे हैं, आपने एक सबक पढ़ा होगा, शायद मैटर की किताब में था, इंग्लिश की किताब में, बर्न दी बोट्स सुना होगा, पढ़ा होगा आपने, कश्तियाँ जला दो, कश्तियाँ जला दो। वह एक शख्स का एक नाम था, पता नहीं तारक उसका नाम था कि क्या था, जो वो मैं बता रहा था मुझे भूल गया है। लेकिन उसने कहा, जब वो जंग करने के लिए गए, पीछे समंदर है, आगे दुश्मन है, तो उसने क्या कहा, कश्तियां जला दो, ताकि जब कश्तियां जल जाएंगी हमारा ध्यान कश्तियों की तरफ नहीं होगा कि अगर बच गए तो हम कश्तियों पर बैठकर वापस चले जाएंगे। उसने कहा कश्तियों को जला ही दो।
ताकि हमारा ध्यान कश्तियों की तरफ ना हो, हमारा ध्यान दुश्मन की तरफ हो। हमने फतह पानी है, हमने पूरे ध्यान से जंग करनी है ताकि हमारा ध्यान पीछे ना हो। और आप जानते हैं कि वो शख्स जो है उसने फतह पाई, उसकी फौज ने फतह पाई, क्योंकि पूरी तवज्जो से उन्होंने जंग की, अपने दुश्मन को उन्होंने हराया और मगलूब किया, उन पर फतह पाई। इसी तरह हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने फरमाया कि जो कोई हल की हथेली पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है वो मेरे लायक नहीं हो सकता। और आप जानते हैं लिखा हुआ है कि लूत की बीवी को याद रखो, उसने पीछे मुड़कर देखा था और वो नमक का स्तून बन गई थी, और आज भी वो नमक का स्तून बनी हुई है क्योंकि उसने नाफरमानी की और पीछे मुड़कर देखा। जब आपने तौबा कर ली है, आपने बपतिस्मा ले लिया है, अब मसीह के शागिर्द बन गए हैं, अब आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना पीछे मेरी जिंदगी कैसी थी। इब्लीस आकर बार बार आपको पिछली वो अय्याशियां याद दिलाएगा, शायद वो सारे काम आपको याद दिलाएगा। वो आप तो ये करते थे, आप तो बड़े पैसे कमाते थे, अब आपने मसीह को कबूल कर लिया है, अब आपके हालात माड़े हो जाएंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, काफ़ी साल पहले की बात है, मुझसे किसी ने बपतिस्मा लिया, तो बपतिस्मा लेने के बाद दूसरे ही दिन उनकी लड़ाई हो गई। तो मुझे बाद में कहने लगे भाई साहब चंगा सी बपतिस्मा लिया, देखो साढ़े सिर पाड़ देते साढ़े अपने रिश्तेदार ने। मैं आखा जी तुहानू ये नहीं पता कि जो बपतिस्मा लिए तो दुख उदों शुरू होंगे ने। यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया, रूह से जंगल में ले गया और शैतान ने 40 दिन तक उसको आजमाया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है। यानी जब आप मसीह को कबूल करेंगे, शैतान आपको कहेगा देख जब तू मेरे साथ था कितनी तूने याशियां की हैं, तूने कितने मजे लिए हैं, तूने ये किया है, तूने कितने पैसे कमाए हैं, अब तूने मसीह को कबूल कर लिया है, अब तू कोड़ी कोड़ी का मोहताज हो गया है। शायद आपको इब्लीस जो है आपके जहन में बहुत सारी बातें डालेगा। अब यहां पर लिखा है और उस जोड़ी बैल को लेकर ज़बा किया और उन ही बैलों के समान से उनका गोश्त उबाला और लोगों को दिया और उन्होंने खाया। तब वो उठा और एलिया के पीछे रवाना हो गया। अलीशा ने ऐसा क्यों किया है? इसलिए किया है क्योंकि बाइबल कहती है कि जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। इसलिए उसने हाथ में डाली और अपने हिस्से के जो जोड़ी बैलों की थी उसने जला दी और उनको कुर्बान कर दिया और लोगों को खिला दिया ताकि मेरा ध्यान पीछे की तरफ ना रहे। उसके पास माली बरकत तो थी, अब रूहानी बरकत लेने के लिए, मोक्षे करने वाली बरकत लेने के लिए उसने कुर्बानी दी है, उसने सब कुछ छोड़ दिया है। जैसे खुदा ने अब्राहम से कहा तो अपने वतन को छोड़, अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपने माँ बाप को छोड़, अपने बहनों भाइयों को छोड़ और सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले। मसीह ने भी अपने शिगिर्दों को कहा, मत्ती जो है वो मसूल ले रहा था, ऐसे ही ना, और यीशु ने कहा उठ अपना सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले, और उसने ऐसा किया, छोड़ दिया वहां पर सब कुछ। तो मसीह ने कहा कि जो कोई मेरी खातर अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, बीवी को, बच्चों को, रिश्तेदारों को, यहाँ तक कि अपनी जान को भी मुझसे ज्यादा अजीज रखे वो मेरे लायक नहीं हो सकता। सो यहाँ पर अलीशा ने सब कुछ छोड़ा है वहां पर और आसमानी बरकत और पाक रूह का मस्सा हासिल करने के लिए वो अलीशा के पीछे हो लिया है। अगर आज आप भी मस्सा हासिल करना चाहते हैं, आपको भी कुछ छोड़ना होगा। टीवी छोड़ना होगा, टच छोड़ना होगा, आपको बुरी सोसाइटियां आपको छोड़नी होगी, इधर उधर टाइम जाया करना आपको छोड़ना होगा और आपको यहां पर आना होगा। सुबह जो 9 बजे हम दुआया मीटिंग करते हैं उसमें आपको आना होगा, रात को हमने 8 से 9 तक मीटिंग शुरू की है उसमें आपको आना होगा, और फिर खुदा आपको अपने रूह से ममूर करेगा। और आपने एक जुमला सुना होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ हासिल करने के लिए कुछ करना पड़ता है। एक बच्चा जिसको हम प्ले में दाखिल करवाते हैं वो कितने साल पढ़ता है, फिर जाकर उसको मैट्रिक की सनद का मुंह देखना नसीब होता है। ऐसे ही पाक रूह हमें ऐसे नहीं मिलेगा, पाक रूह खुदा है और लिखा तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, जब पूरे दिल से मेरे ताल्लुक हो जाओगे तो मैं तुमको मिल जाऊंगा। ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खुल जाएगा। पूरे दिल से जब तुम मेरे ताल्लुक होगे तो मैं तुमको मिल जाऊंगा। इसलिए पूरे दिल से ताल्लुक होना और बहुत कुछ आपने छोड़ना है, बहुत कुछ छोड़ना है, फिर जाकर खुदा जो है आपको अपने रूह से ममूर करेगा। अलीशा ने ऐसे ही
रुका दुगना मस्सा नहीं ले लिया, उसने बड़ी कुर्बानी दी है। गौर कीजिएगा जरा, यहां पर जरा बच्चों को कंट्रोल कीजिएगा और यहां पर भी जरा गौर कीजिएगा। लिखा है, मैं फिर 21वें आयत को पढ़ना चाहता हूं। तब वो उसके पीछे से लौट गया और उसने उस जोड़ी बैल को लेकर ज़बह किया और उन्हीं बैलों के समान से उनका गोश्त उबाला और लोगों को दिया और उन्होंने खाया। तब वो उठा और एलिया के पीछे रवाना हुआ और उसकी खिदमत करने लगा, उसका शागिर्द बन गया। और शागिर्द का मतलब होता है उस्ताद के पीछे चलने वाला, उस्ताद के चुगिर्द घूमने वाला, 24 घंटे अपने उस्ताद के साथ रहने वाला, उसकी खिदमत करने वाला। और यहां पर लिखा है वो किसकी खिदमत करने वाला लगा? अवाम की नहीं या खुदा की नहीं, यहां पर लिखा हुआ एलिया की खिदमत करने लगा। किसकी खिदमत करने लगा? एलिया की खिदमत वो करने लगा। अगर आप हवाला पढ़ना चाहते हैं तो मेरे साथ दूसरी सलातीन उसका 3रा बाब और उसकी 11वीं आयत को पढ़िए। दूसरी सलातीन 3रा बाब और उसकी 11वीं आयत। आपको पता चल जाएगा कि वो एलिया की खिदमत करता था। आज लोग डायरेक्ट जो है वो खुदा की खिदमत करना चाहते हैं। इसको थोड़ी देर पीछे ले जाए। आज लोग डायरेक्ट क्या करते हैं? वो खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, वो खादमों की खिदमत नहीं करना चाहते। याद रखें, जब तक आप किसी एक पास्टर को अपना बाप नहीं मानेंगे, रूहानी बाप नहीं मानेंगे, उसकी आप खिदमत नहीं करेंगे, आपको बरकत नहीं मिलेगी। खुदा डायरेक्ट आसमान से आपको बरकत नहीं देने वाला। मेरे बहुत से उस्ताद हैं, 3 साल मैंने लाहौर से ट्रेनिंग की, 1 साल मैंने शांति नगर से ट्रेनिंग की, और मैंने बहुत से उस्तादों से सीखा खुदा के कलाम को, उनके पाँव दबाए, उनकी मालिश की है। और उनके पाँव में बैठकर जब शागिर्द अपने उस्ताद के पाँव में बैठता है तो फिर वो कोई ना कोई सवाल करता है, उसके अंदर सीखने की ख्वाहिश होती है। शागिर्द उसको कहते हैं जो सवाल करता है, जो पूछगीछ करता है कि मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रही, मुझे बताएं। मैंने बारीकी के साथ सीखा है, इसलिए जब मैं बड़े बड़े प्रोग्राम्स पर बारीकी के साथ कलाम सुनाता हूँ, तरतीब के साथ, तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये कलाम हमने पहली दफ़ा सुना है। क्यों? क्योंकि मैंने सीखा है, मुझे पता है कि एंड तक मुझे पता है क्या होने वाला है। हालेलुया। ये 3 बाब की 11वीं आयत मेरे साथ जरा पढ़िए। 3 बाब की 11वीं आयत। लेकिन यहोशफत ने कहा कि क्या खुदावंद के नबियों में से कोई यहाँ नहीं, ताकि उसके वसीले से हम खुदा की मर्जी दरियाफ्त करें। यानी खुदा की मर्जी को मालूम करने के लिए भी नबी, पैगंबर, रसूल की ज़रूरत होती थी। आज तो शायद लोग समझते हैं कि हमें इसलिए किसी भी पास्टर से रफाकत करनी चाहिए क्योंकि कल को हमने निकाह भी करवाना, हमने मंगनी भी करवानी है, हमने शुक्रगुजारी की इबादत भी करवानी है, हमने कोई जनाजा भी करवाना है या मेमोरियल सर्विस, इसलिए हमें पास्टर की ज़रूरत है। लेकिन उस वक्त लोग कहते थे कि खुदा की मर्जी को मालूम करने के लिए क्या यहाँ पर कोई नबी नहीं, नबियों में से कोई नबी नहीं जो हमें बताए कि खुदा की मर्जी हमारे बारे में क्या है। इसलिए लोग नबियों की तलाश करते थे, पैगंबरों की, रसूलों की। आज लोग इस बात की तलाश करते हैं सिर्फ हमें शिफा मिल जाए। क्या मिल जाए? सिर्फ शिफा। इसलिए लोग जो है वो तलाश करते हैं। जब कोई शिफा वाला खादम आ जाए तो सारे के सारे लोग चले जाते हैं स्टेडियम में, लेकिन जब कोई कलाम सुनाने वाला है तो शायद बहुत कम लोग जाएं क्योंकि उसके पास शिफा की बरकत नहीं है। इसलिए आज हमें क्या चाहिए? हमें तो कलाम सुनने की जरूरत है। आगे लिखा है, और शाह इस्राएल के खादमों में से एक ने जवाब दिया कि अलीशा बिन साफत, यानी साफत का बेटा अलीशा यहाँ है जो एलिया के हाथ पर पानी डालता था। एलिया का शागिर्द जब एलिया आसमान पर उठाया गया तो उन्होंने कहा एक नबी यहाँ पर इस इलाके के अंदर मौजूद है जिसके पास मौजज़े करने की ताकत है, जिसके पास एक चद्दर है जो एलिया के पास होती थी। और जब वो आसमान पर जा रहा था तो उसके शागिर्द अलीशा पर वो चद्दर आकर गिर पड़ी और उसने वो चद्दर उठाई और बहरा कुलज़म में मारा और कहा एलिया का खुदा कहाँ है। और बहरा कुलज़म 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। और एलिया ने 7 मौजज़े दिखाए, अलीशा ने 14 मौजज़े दिखाए। और 14वां मौजज़ा बड़ा ही जबरदस्त मौजज़ा। अलीशा को मरे हुए कई मुद्दतें गुजर चुकी थी, कब्रें बह चुकी थी। एक और बंदा मर गया, जब उसको
कब्र खोद कर दफनाया गया तो अलीशा की हड्डी के साथ वो मुर्दा जब टच हुआ तो वो जिंदा हो गया। बंदा मर जाए तो उसमें मसा कभी देखा आपने? बोलो, नहीं ना देखा। कभी आपने देखा कि बंदा मर जाए तो उसके साथ कोई टच हो या कोई और मुर्दा टच हो जाए तो वो जिंदा हो जाए? एलिया की हड्डियों के अंदर भी मसा था। इसको कहता है रूह का दुगना मसा। और ये उसने कैसे हासिल किया जी? उसने कुर्बानी दी है। मैं आज आपको ये नहीं कहने वाला कि जिस तरह इस बंदे ने हल पंजाली जला दी और